Assalamu alaikum everyone. Today we will be discussing on the topic of elasticity. The last class was about equilibrium, and you have done the demand and supply and market equilibrium and restoring back to equilibrium. Uh, what happens if the price is above equilibrium or below equilibrium? So today's class is allocated to elasticity. So this is elasticity, and this is lecture 3.2. Okay. So, what is elasticity? We know that quantity demanded is a function of price, and if I write it in terms of equation, so I generally write just like this. So, what this coefficient is? This coefficient is the slope of demand function. This negative sign shows that opposite relationship between price and quantity demanded, but this is slope. If I talk about elasticity and specifically price elasticity, so what do I have? I have इलास्टिसिटी है जिसमें कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है जी, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, उसको हम लिखते हैं ऐसे, और उसका होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आप इसको एलैबोरेट करते हो तो यू गेट दिस डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू डी। क्यू और क्यू डी एक ही चीज़ है, मैं बार बार क्यू डी नहीं लिखूंगी, समटाइम आई मे मिस। ओके, और स्लोप क्या चीज़ होती है? स्लोप ऑफ स्लोप स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन, वो क्या होती है? डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी। So can you see that there is one ingredient in the elasticity formula is the slope. So there is some link between elasticity and in demand function. So what is that link? First of all, we will explore that. So I'll make a conventional demand function containing here quantity demanded and here prices, and I make a linear demand function. इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट वो जहाँ पे ये पी एक्सेस है, एक पॉइंट वो जहाँ पे क्यू एक्सेस है, एक पॉइंट वो जहाँ पे हम एक 45 डिग्री लाइन लगाएंगे which will cut this demand function exactly in the middle. So this point is important. इसके अलावा क्या important है? ये वाली रेंज, और कौन सी वाली रेंज? ये वाली रेंज। So what do we have? It's a linear demand function. Okay, linear demand function. What does it mean by linear demand function? Linear demand function is a function where slope is constant, slope remains same. But does elasticity also remain constant at this entire curve? The answer is right here. If you look at here, this formula contains two parts, the slope part and P by Q part. The slope is constant thing, but Q by P, price and quantity की information is changing at every point. So because of this, elasticity will be changing at every point. So if you look at this point, इसके ऊपर price elasticity की value होती है infinity. So this is one extreme and this one is another extreme. यहाँ पे elasticity की value होती है 0. अच्छा, जब हम elasticity की values की बात करते हैं ना, तो we talk in term of absolute sign, क्योंकि elasticity की itself value जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि elasticity जो है वो रिलेशनशिप क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का है, और ये लॉ ऑफ डिमांड की वजह से हमेशा नेगेटिव होती है। एज यू कैन सी कि डेल्टा क्यू डी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है प्राइस के साथ की चेंजेस से। तो you do not need to worry about the negative sign because we know that it's negative, but what we are actually interested in, what is the intensity। यानी कि अगर आपके पास इलास्टिसिटी है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मतलब इसको पॉजिटिव बना लें आप, ठीक है जी, आप इसको पॉजिटिव बना लें और आपके पास आंसर आएगा 4%। ठीक है, और अगर इसको पॉजिटिव बनाएंगे आप, सो यू विल गेट आंसर 2%। सो हाउ वुड आई एक्सप्लेन इट? It is actually 4% divided by 1%. So in the point is that elasticity जो है वो क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं यहाँ पे लिखूँ अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब प्राइस जो है वो 1% इंक्रीज हुई
तो कंज्यूमर ने क्वांटिटी डिमांड को 4% डिक्रीज कर लिया। जबकि दूसरे वाले केस में, जो ये वाला केस है, इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन होगी कि फॉर 1% इंक्रीज इन प्राइस द कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड वाज 2%। सो प्रैक्टिकली रिस्पॉन्स इज हाई इन दिस केस। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव नंबर लेके चलेंगे तो ये -4 इज अ स्मॉलर नंबर एज कम्पेयर टू 2। सो आई होप दैट आई मेड माई पॉइंट कि अब मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जब आपने इलास्टिसिटी के एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना है तो पॉजिटिव साइन के साथ एक्सप्लेन करना है। Given this understanding, now we are moving towards again to the most important 5 points on the demand function in term of elasticity. तो यहाँ पे जो है ना, एक एक्सट्रीम है और यहाँ पर दूसरी एक्सट्रीम है। यहाँ पर होती है इलास्टिसिटी इन्फिनिटी और यहाँ होती है 0, और मिडिल में होती है प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो अब आप सोचो कि ये नंबर इन्फिनिटी से 1 पर आ रहा है और फिर 1 से 0 पे जा रहा है, तो एक्चुअली elasticity is continuously decreasing as we are going down, one thing. Second ये है कि अगर एक चीज infinity है तो यहाँ पे 1 है, तो इस पूरी रेंज में elasticity की वैल्यू क्या होगी? So you can understand कि जाहिर सी बात है ये elasticity infinity से कम और 1 से ज्यादा होगी। So what do we call it? Price elasticity greater than 1। और यहाँ पर देखो 1 से लेके 0 तक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है इस रेंज में वो लेस देन 1 होगी। तो जब हमारे पास, मैं नीचे लिख रही हूँ, जब हमारे पास चीजें हो इस तरह से, so the details are, so details किसकी, अभी जो हमने डिस्कस किया है प्राइस इलास्टिसिटी को। पहली थी हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, इसे कहते हैं इन्फिनाइटली इलास्टिक। दूसरी थी हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू greater than 1, इसे कहते हैं इलास्टिक। इन एनी प्रोडक्ट whose elasticity comes at greater than 1 we call its elastic product। तीसरी है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू इक्वल्स टू 1, इट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक। और चौथी है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1, इट इज कॉल्ड इन इलास्टिक। ठीक है जी, और क्या रह गया? इसके अलावा एक इलास्टिसिटी की वैल्यू रह गई है और वो है नंबर 5, when price elasticity is equals to 0। हाँ, तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? completely inelastic। ओके, सो गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग कि आपको इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आ गया। इलास्टिसिटी जो है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डन। इसका फॉर्मूला भी डन, वो होता है डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये भी डन हो गया। इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो होती हैं वो 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। 0 का मतलब है कम्प्लीटली इनइलास्टिक, इन्फिनिटी का मतलब है कम्प्लीटली इलास्टिक, 1 का मतलब है यूनिट इलास्टिक। यहाँ पर होगा 0 से 1 के दरमियान तो इनइलास्टिक कहते हैं उसे, और यहाँ पे कहते हैं इलास्टिक। ठीक है जी, इलास्टिक का मतलब ये होता है द रिस्पॉन्स इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस जो है वो 1% इंक्रीज हुई है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो 2% डिक्रीज हुई है, इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांड ने ज्यादा रिस्पॉन्स कर दिया, इसको हम कहेंगे इलास्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमारे पास आता है इलास्टिसिटी की वैल्यू, वो आती है जी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसकी वैल्यू आती है 0.5। तो इसको भी आप लिख लो नीचे 1। सो बेसिकली आप कैसे कहोगे? आप कहोगे 1% इंक्रीज इन प्राइस implies 0.5% decrease in quantity demanded. Quantity demand is responding, but it is lesser than the increment in price. So इस तरह की products को, इस तरह की demands को, demand of this type whose elasticity is less than 1 with price elasticity less than 1 is called inelastic। inelastic का ये मतलब नहीं कि हिल नहीं रही, inelastic का मतलब है कम हिल रही है कंपेयर टू प्राइसेस। ठीक है जी, उसके अलावा मैंने जो क्लास में एक चीज़ और करवाई है कि ये तो हमने कर लिया। अब आपको मैं दोबारा से एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि ये वैल्यूज़ मैंने कर ली हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ मैंने मैं दोबारा डिमांड फंक्शन बना रही हूँ। यहाँ पर क्यू डी है और यहाँ पर पी है,
और ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पर हमारे पास इलास्टिसिटी होती है इन्फिनिटी। एंड आई होप कि आप ये समझ रहे हो कि ये मैं पॉजिटिव इसलिए बना रही हूँ कि क्यों मैं एज्यूम कर रही हूँ, मैं एब्सोल्यूट साइन ले रही हूँ। आई एम नॉट कंसिडरिंग द नेगेटिव साइन बिकॉज आई नो दैट इट इज नेगेटिव। ठीक है जी। और प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कहाँ पर, ये सारी रेंज में, और ये सारी रेंज में प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ये सब मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। अब मैं आपके सामने एक चीज बना रही हूँ। लुक एट दिस, that if I write the formula for elasticity which is delta QD or delta P into P by Q, तो ये वाला जिसमें पार्ट है ये क्या चीज है, और से देखें ये क्या चीज है, ये स्लोप है। किसकी, डिमांड फंक्शन की। तो इसका मतलब है कि ये जो स्लोप है इसके अंदर पड़ी हुई है, तो स्लोप और इलास्टिसिटी में एक लिंक है। व्हाट इज दैट लिंक, इज इट पॉजिटिव लिंक और नेगेटिव लिंक। इसको अगर मैं देखूं तो इसका मतलब है एज फार एज दिस नंबर इज इंक्रीजिंग इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है पॉजिटिव लिंक है। लेकिन इफ आई से कि look, if I have this elasticity formula and I have different slopes of elasticity, for example assume करें कि अगर मेरे पास एक, let me make it over here, अगर मेरे पास एक ग्राफ में बनाती हूँ ऐसे करके, ठीक है, just to make you understand, and I make it here QD and I make it here P, ठीक है जी। और ये है मेरे पास एक कर्व और दूसरा है ये वाला, इसकी है स्लोप हाई, ये स्टीपर है, और इसकी है स्लोप लो। तो इनमें से इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एज वी कैन सी कि इलास्टिसिटी और स्लोप में डायरेक्टली रिलेशनशिप है। तो अपेरेंटली जिसकी स्लोप ज्यादा है उसी की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। बट दिस आंसर इज रॉन्ग बिकॉज yes it holds if I had made my demand function was a direct one। अभी मैं देखो इनवर्स डिमांड फंक्शन बना रही हूँ। I practically had to take, मुझे P को इस पे लेना चाहिए था और Q को इस पे लेना चाहिए था। यानी अगर मैं इस तरह डिमांड फंक्शन बनाऊं, अब आपको ज़्यादा सारा समझ आएगा कि इस तरह मैं डिमांड फंक्शन बनाऊं, if I take this demand function, look डायरेक्ट मैं बनाऊं डायरेक्ट डिमांड फंक्शन, और यहाँ पे बनाऊंगी मैं इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो लुक यहाँ पर फिर आएगा P, क्योंकि डिमांड क्या चीज़ होती है, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो प्रैक्टिकली प्राइस को एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, हम बनाते हैं उल्टी। तो सपोज करो कि अगर मेरे पास ये ग्राफ है, तो ये एक स्टीप ग्राफ है। यहाँ पे इस वक्त डिमांड फंक्शन की यानी डी क्यू डी ओवर डी पी इज अ हाई नंबर, ठीक है जी। लेकिन अगर इसी को मैं इन्वर्स कर दूं, यू डी यहाँ पे ले पी यहाँ पे ले, तो ये ग्राफ ऑल टुगेदर फ्लैट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे स्टीप है वो यहाँ पे फ्लैट है। अब अगर मैं बात करूं इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी के लिंक को अगर हम डिफाइन करें इनके साथ, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला तो ये है, वो क्या कहता है, डी क्यू डी ओवर डी पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, फॉर्मूला इसके लिए भी वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, नो मैटर वेदर यू आर मेकिंग द डायरेक्ट डिमांड फंक्शन और इनवर्स डिमांड फंक्शन, फार्मूला वही रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं फार्मूले में इस फार्मूले को, इस इलास्टिसिटी की वैल्यू को इस डिमांड फंक्शन से लिंक करती हूँ, तो अपेरेंटली क्या होगा कि अगर मैंने डायरेक्ट डिमांड फंक्शन बनाया है तो इलास्टिसिटी हाई, द स्टीपर डिमांड फंक्शन वुड हैव मोर हाई इलास्टिसिटी, ये इसमें ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लैटर डिमांड फंक्शन है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि हम कन्वेंशनली ये वाला ग्राफ बनाते हैं, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज द लिंक बिटवीन स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन एंड इलास्टिसिटी, सो प्रैक्टिकली क्या नजर आ रहा है कि फ्लैटर दी, मैं यहाँ पे इनवर्स डिमांड फंक्शन लिख देती हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे, फ्लैटर द इनवर्स डिमांड फंक्शन, जितना फ्लैट है हायर इज द इलास्टिसिटी। समझ आ गई बात की। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको नेक्स्ट वाले थोड़ा सा और फर्दर बनाती हूँ चीजें, तो क्या होगा कि ये देखो, ये बनाया मैंने Q और ये मैंने बनाया भी QD, ठीक है जी। ये मैंने बनाया स्टीप डिमांड फंक्शन, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लो।
स्लोप क्या होगी, हाई। और ये मैंने बनाया फ्लैट डिमांड फंक्शन, इसकी स्लोप क्या है, लो, और इसकी इलास्टिसिटी क्या है, हाई। तो याद रखनी ये बात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हायर द स्लोप लोअर द इलास्टिसिटी। ठीक है जी, अब जरा वापस आते हैं अगली बात के ऊपर। ये हमने क्लियर कर लिया, स्लोप और इलास्टिसिटी का लिंक हमने डन कर लिया। अब वापस आते हैं कि हमारे पास अगर हो इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to percentage change in price is infinity. How would it be infinity if the percentage change in quantity demand is there but this denominator is zero? That is, price is not changing. Price is not changing, and I want to make the graph for this kind of situation, a demand function whose elasticity is going to be infinity. And remember, I am making this thing. What is not changing? P is not changing. If P is not changing, so what type of demand function we would have? It's going to be like this. तो हॉरिजॉन्टल डिमांड फंक्शन होगा। तो इसका मतलब वैसे भी मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी की वैल्यू में और स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन में ऑपोजिट लिंक है। तो देखो, प्राइस इलास्टिसिटी अगर इन्फिनिटी है तो डिमांड फंक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी अगर जीरो है तो डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है वर्टिकल, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो डिमांड फंक्शन कैसा होगा, फ्लैट के स्टीप, ऑफ कोर्स फ्लैट, क्योंकि इलास्टिसिटी में और डिमांड की स्लोप में ऑपोजिट रिलेशन है। और अगर प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है तो इस तरह का डिमांड फंक्शन जो है वो होगा स्टीप, जितनी ज़्यादा कम इलास्टिसिटी उतना स्टीप डिमांड फंक्शन। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट। और हाँ, आखिरी रह गया, अगर प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होगा ना तो डिमांड फंक्शन पता कैसा होगा, क्यू डी पी 45 डिग्री लाइन ऐसे करके होगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये 45 डिग्री बनाता है, 45 डिग्री, तो ऐसा डिमांड फंक्शन जिसकी इलास्टिसिटी 1 होती है। ओके, तो ये हमने क्लास में किया था, जो कि इतना हमने किया था। ठीक है, और इसके बाद कुछ चीज़ थी जो कि रह गई थी, कुछ वैल्यूज़, वो मैं आज यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। द टॉपिक विच was not covered in today's lecture। तो वो मैं इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू गो थ्रू दिस टॉपिक, क्योंकि वो इसका लिंक्ड है। तो मूव ऑन। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, हमारे पास रह गया है जी इलास्टिसिटी में हम कर रहे थे इलास्टिसिटी, ठीक है जी, एंड वी आर डन विद प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी, और इसके अलावा इनकम इलास्टिसिटी, और इसके अलावा क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, ये और ये करना है। तो बिफोर आई कंप्लीट दिस, एक न्यूमेरिकल छोटा सा मैं आपको करवा देती हूँ कि लेट्स से वी हैव डेटा ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो वी हैव लाइक से 0, 5, 10, 15, 20, 25, it's 50, 40, 30, 20, इसके साथ है ये, इसके साथ है ये, इसके साथ, और ये, and 10 and 25 is 0. So this is the data we have, okay, and I would call these points as A point, B point, ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, और ये E है, और ये F है। और इसका मैं ग्राफ अगर बनाऊं तो यहाँ पे आएगा क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे आएगा प्राइस, एंड देन प्राइस जो है 0, 5, 10, 15, 20, 25 तक है। यहाँ पे तो 0 होता है, 5, 10, 15, 20 एंड 25, और क्वांटिटी डिमांड क्या है, 10, 20, 30, 40, 30, 40, और ये आ गया 50। तो हम पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ए, 0 प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड कितनी है,
50, तो वो कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है? वो ये पॉइंट है, ये क्योंकि क्वांटिटी डिमांड एक्सिस है। दूसरा पॉइंट ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है। फिर दूसरा है 5 एंड 40। 5 एंड 40 पे बेसिकली यू आर यहाँ पर 10 और 30, वो है पॉइंट यहाँ पर 15 and 20, 20 and 10 and then 25. So basically आपके ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके डाटा से I just had, तो ये हमारे पास आ गए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये हमारा कन्वेंशनल डिमांड फंक्शन है, इनवर्स फॉर्म में हमने बनाया हुआ है। अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं? हम इसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इलास्टिसिटी की जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं? वो है जनाब, यहाँ पे मिलती हूँ। इलास्टिसिटी जो है, सपोज आई से, क्वेश्चन क्या है मेरा? फाइंड elasticity, price elasticity when price changes from point E to point D। तो हमारा रेफरेंस कहाँ से? इनिशियल पॉइंट कौन सा है हमारा? इनिशियल पॉइंट है E, ठीक है। और E कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये रहा E। और हमारा फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट हमारा क्या है? F। कहाँ पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है। तो पॉइंट ई और पॉइंट एफ, ठीक है जी। तो पॉइंट ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, प्राइस और क्वांटिटी का डेटा अगर आप देखो, तो प्राइस है जी आपके पास ई के ऊपर 20 और क्वांटिटी है आपके पास 10, और यहाँ पे प्राइस है जी 25 और क्वांटिटी है आपके पास 0। ये डेटा आपके पास अवेलेबल है। मैं आपसे कह रही हूँ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो। सो यूल से प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड over percentage change in price, which is equals to delta QD over delta P into P by Q। delta QD का मतलब क्या है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सो व्हाट इज दिस डेल्टा QD? QD की वैल्यूज कौन सी है? ये वाली हैं। सो यू विल गेट 0 minus 10। और चेंज इन प्राइस क्या है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सो दिस इज 25 minus 20, ठीक है जी। ये आपका डेल्टा क्यू और डेल्टा पी आ गया। अब पी और क्यू में आप हमेशा लिखते हो कौन सा पॉइंट? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा? इनिशियल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? आपका ई पॉइंट है, ठीक है जी। तो बिकॉज यू स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम ई एंड मूव्ड ऑन टू एफ, तो पी और क्यू में आप इनिशियल पॉइंट डालते हो। तो बेसिकली यहाँ पे पी डालना है, तो पी की जगह क्या आएगा? 20 आएगा, और क्यू की जगह क्या आएगा? 10 आएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो व्हाट आई विल गेट? I will get minus 10 over 5 into 20 by 10। ये चला गया, ये चला गया, और ये 5 is 4, so minus 4। so basically अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी को एब्सोल्यूट कर लूँ तो this is 4 which is greater than 1। so इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट E पर, at point E elasticity is, commodity is elastic, commodity is elastic, ठीक है जी। इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आई है। इसी तरह से अगर मैं मालूम करना चाहूँ इलास्टिसिटी, एंड नाउ माई आई एम मूविंग फ्रॉम एफ टू ई, आई एम नॉट मूविंग फ्रॉम ई टू एफ बट एफ टू ई। सो मूवमेंट इज मूविंग, लेट्स मूवमेंट इज फ्रॉम एफ टू ई। अब आपका एफ जो है इट विल बिकम इनिशियल पॉइंट एंड ई जो है वो बनेगा फाइनल पॉइंट, ठीक है जी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी इनिशियल पॉइंट होता है we would have to put this value in P into Q। That's why we have to identify which one is initial and which one is final। Now I'm again working with elasticity which is equals to dQD over dP into P by Q। Now again working with a final initial point, final minus initial। तो आपका F point जो था वो इनिशियल है और E जो है वो अब फाइनल। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ई टू एफ, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी 0 माइनस 10, और ओह नहीं, यहाँ मिस्टेक नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ये लिया हुआ था। अब लेकिन हमारा इनिशियल पॉइंट जो है वो ये है, तो हम इलास्टिसिटी प्रैक्टिकली
इस फाइनल इनिशियल पॉइंट पे कर रहे हैं, यानी एफ के ऊपर इलास्टिसिटी ले रहे हैं। और आप देखो एफ कहाँ पर पड़ा हुआ है, एफ आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और इसके ऊपर जो हमने पढ़ा है पीछे, उस पे इलास्टिसिटी क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। तो इसका मतलब है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो कैलकुलेशन है वो इन्फिनिटी के बराबर आएगा। सो लेट्स सी, so what we have exactly the same thing, it's going to be infinity, because anything divided by infinity is infinity, anything divided by zero is infinity. तो f के ऊपर price at f, price elasticity at f is infinity and it has to be, जबकि price elasticity at e is equals to 4। कितना फर्क पड़ गया, सिर्फ हमने इनिशियल पॉइंट चेंज किया, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि इलास्टिसिटी जो है वो हर डिमांड करके हर पॉइंट पे चेंज होती है, एंड एज यू कैन हैव सीन। अच्छा, अब इस चीज को जो है वो खत्म करने के लिए कि जब भी हम इनिशियल पॉइंट को चेंज करते हैं तो हमारे पास इलास्टिसिटी चेंज आ जाती है। सो ये थी इलास्टिसिटी एट पॉइंट, इसे कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, बिकॉज हमने इसके अंदर, ये थी पॉइंट इलास्टिसिटी, इसमें हमने क्योंकि हमने जो P बाई क्यू है वो हमने ओनली वन पॉइंट, हमने जो है वो ओनली वन पॉइंट जो हमने उसकी वैल्यूज डाली। मगर कभी कभी हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ द एंटायर रेंज, रेंज की इलास्टिसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ इसको, तो ये देखो, ये आपके पास है ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर अगर आप पॉइंट ई इसके ऊपर करते हो, एफ पे करते हो, ई पे करते हो, डी पे करते हो, यानी यू आर वर्किंग टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी एट एफ ई डी, कोई भी पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। बट अगर आप इस तरह से करते हो कि आप इलास्टिसिटी जो है, यू आर मूविंग फ्रॉम ई टू एफ या एफ टू ई, जो भी है, लेकिन आप you're saying that I want to calculate the elasticity of this whole range, not at this point, not at that point, but the elasticity of this whole range। तो इस ये जो चीज है, ये वाली whole range की जो elasticity है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, arc elasticity, arc elasticity, point elasticity नहीं, arc elasticity। और होता कैसे है वो, let me show you।